Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Contemporary South Asia, and under this chapter we were discussing India's relationship with its neighbors, and we have discussed about the conflicting relationship between India and Pakistan, and we have also discussed about the relationship between India and Bangladesh, and we have seen that between India and Bangladesh, there are some conflicting issues because of which there is a bad relationship is there between the two countries. But we have also seen that there are some issues on which both the countries are cooperating with each other also. So with Bangladesh, we can say we have a mixture of relation. We have some issues on which there is conflict, but at the same time we have some issues on which we are cooperating with each other. And now we will shift our focus to the third country, that is Nepal, the relationship between India and Nepal. India and Nepal relationship. So what we find, India's relationship with Nepal is a very cordial relationship, and the relationship which is there between India and Nepal, that type of relationship is very rare in the different in any part of the country, in any part of the world. We don't see such type of relationship is there. बहुत rare होते हैं इस तरह के relation, क्योंकि what we find कि ये जो इंडिया और नेपाल हैं, इनके बीच में एक ऐसी ट्रीटी हुई है. बिकॉज ऑफ दैट ट्रीटी व्हाट हैपन्स कि जो सिटीजन्स ऑफ द टू कंट्रीज आर they can travel to the country of one another, and not only they can travel but they can also work in other country without any visa and passport. There is no need of visa or passport if we want to, if someone from India wants to go to Nepal, or he wants to for the purpose of travel or for the purpose of work also, there is no need of visa or transport. In the similar way, if someone from Nepal wants to come to India for travel or work, there is no need of visa and transport. This is the special relationship between India and Nepal. This is the relationship which is very rare to found between between any of the two countries, because ये बहुत ही स्पेशल रिलेशन कहलाता है कि वीज़ा पासपोर्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का लेवल इसको हम कहेंगे कि इतना हाई है इंडिया और नेपाल के बीच में कि इस तरह की ट्रीटी की गई है. तो ये तो कॉर्डियल रिलेशन है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस व्हाट वी फाइंड कि ये देयर आर सम इश्यूज which are causing conflict between the two countries, and the most important issue which is causing conflict is trade related disputes. पास्ट में ऐसे हुए हैं कि ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में. देन व्हाट वी फाइंड कि नेपाल इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, and because Nepal is a landlocked country, so it needs it wants to use the territory of India for the purpose of trading, and this has also caused troubled relationship between the two countries. Not only this, the trouble between the two countries is also because of cordial relationship between China and Pakistan, China and Nepal. नेपाल का रिलेशनशिप चाइना के साथ बहुत ही वार्म हो जाता है, एंड ये जो वार्म रिलेशनशिप उनका है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल का कॉज बनता है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग a good relationship with China, and we want support from our neighboring countries against China. But when these neighboring countries are showing their support towards China, then it causes trouble, diplomatic trouble also for India. So this is another cause of trouble
then we also find कि Indian government is also unhappy with the Nepalese government because the Nepali government is not doing anything for the activities, anti-India activities which are going on from the territory of Nepal. ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग कि नेपाल की जो टेरिटरी है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही है. पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिल रहा है, चाइना का सपोर्ट मिल रहा है. तो ये दिस इज़ ऑल्सो कॉजिंग ट्रबल बिटवीन द टू कंट्रीज. देन अगेन इफ वी सी कि अगर ट्रबल का और क्या रीज़न है, ट्रबल का रीज़न माओइस्ट, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द most important cause of conflict, because we have seen when we were discussing the internal politics of Nepal, we have seen कि there is influence of Maoist in different parts of the country, and we see कि ये जो influence नेपाल में है वो उसका जो Maoist नेपाल में है उनका influence इंडिया के भी कंट्री स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. जैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिहार. नेपाल की बॉर्डरिंग जो कंट्री है, बॉर्डरिंग स्टेट है, वन ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ नेपाल इज़ बिहार. तो बिहार में जो माओइस्ट है वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं और फिर ये नीचे आकर के आंध्र तक ये माओइस्ट जो है वो स्प्रेड हुए हैं इंडिया में. तो ये एक बहुत बड़ी कॉज ऑफ ट्रबल है बिटवीन द टू कंट्रीज. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फ्रॉम द साइड ऑफ नेपाल? क्यों ये प्रॉब्लम्स जो हम कह सकते हैं अरोज हो रहे हैं? क्यों चाइना के साथ नेपाल का रिलेशन बढ़ रहा है? क्यों पाकिस्तान के साथ नेपाल का रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है? क्यों नेपाल की टेरिटरी इंडिया के अगेंस्ट यूज़ हो रही है? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? व्हाट इज़ वाई जब हमारे बीच इतना कॉर्डियल रिलेशन था और फिर ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. एंड द रीज़न इज सेम, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो, कि इंडिया का जो साइज है और इंडिया के जो पावर है, दैट इज कॉजिंग ट्रबल. जो नेपाल जैसे जो छोटे कंट्रीज़ हैं उनके मन में ये डर है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहती है, वो हमको बुली करना चाहती है, हमारे ऊपर डोमिनेट करना चाहती है. तो इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं नेपाल में. न सिर्फ वो मौजूद है बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह की फीलिंग्स को प्रमोट किया जाता है. जो चाइना के सपोर्ट में और इंडिया के अगेंस्ट में इस तरह की चीज़ों को जानबूझकर, जिसको हम कहेंगे कि इसको आगे बढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर करता है, इंडिया बुली करना चाहता है. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वही मेन रीज़न है. अगर हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी कारण से आती हैं. ठीक है, तो डिफरेंसेस हैं. ठीक है, बट इन डिफरेंसेस के बावजूद हम अगर नेपाल के साथ अपने अभी करंटली बॉर्डर डिस्प्यूट भी आया है, ये बहुत करंट इश्यूज़ हैं जिसमें कि हमने देखा कि नेपाल ने के और इंडिया के बीच का जो रिलेशन में ट्रबल आ रहा है वो बॉर्डर इश्यूज़ भी उसमें आ रहे हैं कुछ. एंड ऑल दीज वॉट एवर डिस्प्यूट्स, border disputes are emerging in the Indo-Nepal relationship, that is caused by China. चाइना इसके पीछे है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का एलिगेशन है. तो ये एक बहुत मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है. जैसे कि रिसेंटली जो करंट मंथ्स में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कि इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी वर्स होता जा रहा है और उसमें नेपाल भी इंक्लूड हो गया, बिकॉज नेपाल इज ऑल्सो showing some territories of India as its own part. तो ये these are the causes हो रहे हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी कैन से कि जो हम दोनों कंट्री हैं इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हम उसको सोचते हैं कि हम आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे, हमारे बीच का रिलेशन इम्प्रूव करेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कॉन्फिडेंस का होना ही दो कंट्री के बीच के रिलेशन को इम्प्रूव करता है. और अब जैसा कि वी हैव सीन कि इन द 2002 में जिस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो एंडेंजर्ड हो गई, दैन वहाँ
फिर से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंस्टेबिलिटी आई, लेकिन अब वहाँ पर स्टेबिलिटी भी आ गई है, डेमोक्रेसी भी आ गई है। तो वी होप कि इन फ्यूचर हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करेंगे। तो नेपाल के साथ कुछ जो पॉइंट्स है वो हम यही लिखेंगे नेपाल के रिलेशन में कि पहला तो हमारा बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है, और इस कॉर्डियल रिलेशनशिप का रीज़न क्या है, वो अग्रीमेंट जिसके अकॉर्डिंगली वी डोंट नीड वीज़ा और पासपोर्ट, है ना, इन ऑर्डर टू ट्रैवल और टू वर्क इन वन अनदर्स कंट्री। एंड इसके अलावा जो दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, इसमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं इसमें ट्रेड डिस्प्यूट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ conflict. Other than trade dispute, there is warm relationship between Nepal and China. Then use of territory of Nepal for anti-India activities. Then Maoist movement. These are the important causes of conflicts between India and Nepal, and other than this, these are the real causes. And now which we have discussed कि क्यों ये रिलेशन ख़राब है, क्योंकि नेपाल के दिमाग में ये है कि इंडिया जो है वो इंटरफेयर करना चाहती है, इंडिया बुली करती है, जबकि इंडिया का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इंडिया की रिलेशन, दैट इज श्रीलंका, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। When we were discussing the internal politics of Sri Lanka, we have seen there was conflict arose between India and Sri Lanka because of Tamil issues. जो तमिल्स थे उनके साथ जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था, जिसके कारण वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होता है, और इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि जो तमिल्स हैं दे आर ओरिजिनली दे बिलोंग टू इंडिया, और जो इंडिया में जो तमिल्स है दे वांट टू सपोर्ट द तमिल्स हु आर इन श्रीलंका। तो ये जो तमिल्स इंडिया के जो तमिल्स हैं दे पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि उनको इंटरफेयर करना चाहिए, और इस बारे में हमने देखा था कि किस तरह से 1987 में एक अकॉर्ड होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्ड इंडिया सेंट इट्स ट्रूप दैट इज कॉल्ड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका in order to मेंटेन पीस देयर। बट ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि एक तरफ इंडिया जो था वो LTTE जो कि तमिल्स का ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, एक तरफ इंडिया LTTE को सपोर्ट कर रहा था, इन अ वे इट वाज सपोर्टिंग बिकॉज इट वाज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ तमिल्स, एंड LTTE वाज देयर टू फॉर द कॉज ऑफ तमिल्स ओनली। एंड ऑन द अदर हैंड क्या हुआ कि जो IPKF गई इंडिया से वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ थी, तो इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट द LTTE। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया, और उसके बाद 89 में इंडिया की जो IPKF थी वो वापस आ गई विदाउट अचीविंग द इट्स एम कि स्टेबल करना है रिलेशनशिप को LTTE और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच।
बीच में वो एम नहीं अचीव हो पाया और उसके पहले ही वे ये वापस आ गई. तो इफ़ you have to mention all these in your answer if the question comes like the relationship between India and Sri Lanka. The Tamil issues है ना, जो तमिल का इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे. Then the Accord of 1987, and according to that this IPKF went to Sri Lanka and then it returned in 1989 without achieving its aim. But उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इट विल नॉट इंटरफेयर इन एनी वे इन द इशू ऑफ तमिल इन श्रीलंका. ये पूरी तरह से इंडिया ने अपने आप को कर्टेल कर लिया उस इशू से, और उसके बाद हमारा जो रिलेशन था वो बिल्कुल श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ इम्प्रूव करने पर रहा, और इसमें हमने अचीवमेंट भी हासिल की. जबकि हमारा FTA हुआ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ श्रीलंकन गवर्नमेंट, और ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा टुवर्ड्स. एक तो इससे ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, और हमारा रिलेशन कॉर्डियल हुआ. देन 2004 में जब सुनामी आई, उस सुनामी का जो इफेक्ट था इंडिया पे भी हुआ, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, इन सब जगहों पर हुआ था इंडिया में. बट इससे पूरी की पूरी श्रीलंका जो है उस पर बहुत ज़्यादा उनको लॉस हुआ था, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. एट दैट टाइम इंडिया हेल्प्ड श्रीलंका फाइनेंशियली उसके रिकंस्ट्रक्शन में. पोस्ट सुनामी जो रिकंस्ट्रक्शन था उसमें इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया. तो ये 2 पॉइंट जो है ये हमारे बनते हैं पॉजिटिव रिलेशन के टुवर्ड्स. एक हमारा हुआ दीज आर द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप को बता रहा है ये रीजंस. एंड अगर हम देखें तो कोऑपरेशन जो है वो कहाँ पर हुआ, कोऑपरेशन हुआ FTA करके, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. एंड सेकेंड जो हमारा कोऑपरेशन हो रहा है वो पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में. तो these are the this is all about Sri Lanka. You don't need to do in detail. ये बस इतना हमारा enough है. अब इसके बाद एक और कंट्री बचती है हमारी, 2 more countries are there, एक भूटान एंड द लास्ट वन इज मालदीव्स. तो अगर हम देखें तो भूटान के साथ भी हमारा बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन है, काफ़ी अच्छा रिलेशन है. और कुछ मामलों में प्रॉब्लम्स आए हैं, बट ओवरऑल हम यही कहेंगे कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में कुछ भी नहीं है. अगर हम इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप को देखते हैं तो इंडिया और भूटान के बीच में कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज अभी तक नहीं हुए हैं. इसमें एक चीज़ और है कि भूटान जो है, इसका लोकेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न है स्टेट्स, उसके वो नेबरहुड में ही है हम भूटान. तो वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर इंसर्जेंसी है हमारी. वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. तो ये जो इंसर्जेंसी है उसको नेपाल से भी मतलब सपोर्ट मिलता है. नेपाल की वी हैव सीन कि किस तरह से नेपाल की जो टेरिटरी है दैट इज़ यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़. बट भूटान ने इसके लिए एफर्ट किया है कि कैसे जो गुरिल्ला और मिलिटेंट्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसको रोका जाए. और ये वहाँ से भी काम करते हैं, भूटान से भी काम करते हैं जी. ये जो मिलिटेंट हम कह सकते हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो गोरिल्लाज हैं, गोरिल्लाज जो छुपकर वार करते हैं ना, छुपकर जो वार करने वाले होते हैं उनको हम गोरिल्ला कहते हैं. उनके वो एक अलग ही डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होता है.
तो ये गुरिल्ला और मिलिटेंट्स को भूटान जो है वो अपने लैंड को यूज़ करने से रोकता है। भूटान गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में जो एफर्ट किया है वो अप्रिशिएबल है। नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से वो उतना एफर्ट नहीं आया, बट भूटान की गवर्नमेंट ने अपने टेरिटरी को एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने से रोका कि हमारी टेरिटरी पे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन इम्प्रूव कर रहा है। इम्प्रूव क्या करना कि हमारा वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ भूटान, और हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और कुछ बहुत बड़े जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं भूटान में, वो इंडिया उसमें इन्वॉल्व हैं। इंडिया का उसको एड भी इंडिया देती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। उस हिसाब से भूटान के डेवलपमेंट के लिए इंडिया की तरफ से मतलब सबसे ज़्यादा जो एड इस कंट्री को मिलता है भूटान को, वो इंडिया की तरफ से हम कहेंगे इसके डेवलपमेंटल इश्यूज़ के लिए इंडिया एड देती है। तो ये दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इसी तरह से अगर हम मालदीव्स को देखें तो मालदीव्स के साथ भी हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन रहा है, वार्म रिलेशन रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आई थी मालदीव्स में 1988 में, ठीक है। 1988 में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ जो तमिल मर्केनरीज थे वो श्रीलंका से गए थे, और वो एक तरह से अटैक कर दिया था उन्होंने मालदीव्स पे। तो ये जो तमिल मर्केनरीज की तरफ से अटैक हुआ श्रीलंका की तरफ, मतलब दे वर नॉट श्रीलंकन, एक तरह के वो प्रोफेशनल्स होते हैं आर्मी जो कि फॉरेन इसमें काम करने वाले होते हैं, फॉरेन लैंड पे काम करने वाले होते हैं, उनको हम मर्केनरीज कहते हैं। तो ये जो काम हुआ उसमें दे नीडेड सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उनको इंडिया की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। मालदीव से हेल्प मांगी गई, मालदीव ने हेल्प मांगा इंडिया से, और तब इंडिया ने उनको हेल्प दिया। नेवी और नेवी एंड एयरफोर्स दोनों तरफ से वहाँ पर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने उनको हेल्प पहुँचाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अच्छा रिलेशन है हमारे बीच में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने कंट्रीब्यूट किया है, एड भी दिया है, फाइनेंशियल हेल्प दिया है। देन टूरिज्म और फिशरी को भी डेवलप करने में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है वो ये चीज़ें बार बार आ रही हैं, एंड इट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नॉट what is the reason for not having good relationship of India with its neighbors in South Asia, जो इसके लैंड टेरिटरी और वाटर टेरिटरी को शेयर करने वाले नेबर्स हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन आखिर क्यों नहीं मेंटेन होता है? क्यों इतनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की? पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम थी, देन बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम आई, नेपाल के साथ भी कुछ जब न तब कुछ मुद्दों पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? एंड द रीज़न आई टोल्ड यू, इंडिया की साइज, नॉट ओनली साइज, इट्स पावर, इकोनॉमिक पावर, इट्स मिलिट्री पावर। जिस तरह से इंडिया की पावर में ग्रोथ हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जो इंडिया की साइज़ है वो डराने वाली है उनके नेबर्स को, क्योंकि नेबर्स की साइज़ बहुत ही छोटी है। अगर हम दोनों के एरिया को कंपेयर करें तो हम यही देखेंगे कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है साउथ एशिया की, इसका सेंट्रल लोकेशन है। सारे जो भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं अदर देन इंडिया, वो सबका जो बॉर्डर है वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। चाहे लैंड टेरिटरी की बात करें, इधर हमारे वाटर टेरिटरी जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है श्रीलंका से। तो ये चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कंट्री है जिसकी जो हर नेबरिंग कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बहुत ही लाजमी है कि इस तरह के जो डर हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ में आए। बट इसमें ये वी हैव टू मेक इट क्लियर व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज इज इट्स साइज एंड पावर। अदर देन दैट, हम अगर इसको एनालाइज करेंगे कि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन इंडिया पे लगता है कि इंडिया इंटरफेयर्स इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ दीज कंट्रीज। जैसे नेपाल की तरफ से भी ये एलिगेशन आया, बांग्लादेश पे भी आया। तो आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि इंडिया वांट्स पीस इन दिस रीजन।
अगर किसी भी नेबरिंग कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, किसी भी तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, तो क्या होगा कि इस रीजन में, साउथ एशिया में जो आउटसाइड पावर्स हैं, लाइक चाइना है, श्रीलंका, चाइना है, यूएस है, उनको एक तरह का इंटरफेयर करने का मौका मिल जाएगा, है ना। अगर किसी भी साउथ एशिया की कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, तो वो दैट क्राइसिस विल गिव अ चांस टू द आउटसाइड पावर्स, है ना, सो दैट दे कैन गेन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और अगर आउटसाइड पावर्स इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लेंगे, तो फिर वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। दैट इज़ वाई इंडिया वांट्स पीस, कि इंडिया चाहता है कि हर कंट्री जो है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। और उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए हो सकता है इंडिया कभी उस तरह के थिंकिंग रख सकता है, अपना हेल्प का वो एडवाइस दे सकता है, बट इसका इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहता है कि वो किसी और कंट्री पर कंट्रोल करे या उसको बुली करे या किसी तरह से उसका अनड्यू एडवांटेज ले। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन होगा उसको हम सम अप करेंगे कि क्या एलिगेशन लगते हैं, क्यों रिलेशन अच्छा नहीं है, देन एलिगेशन क्या लगता है इंडिया पे, और उस एलिगेशन के पीछे रीज़न क्या है। अगर इंडिया को पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है, इंडिया का जो कुछ भी स्टैंड है वो स्टैंड हमको बताना होगा कि इंडिया वांट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर इनस्टेबिलिटी आएगी तो आउटसाइड पावर्स इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेंगे और फिर पूरी रीजन जो है उससे अफेक्टेड होगा। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम ये भी कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ, साउथ एशिया के अदर कंट्रीज़ के साथ। अगर अदर कंट्रीज़ को भी हम देखें तो उनके बीच भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक नेपाल और भूटान, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए। एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया वो जो नेपालीज थे उनकी माइग्रेशन को लेकर आया। जब नेपालीज जो थे वो नेपाल से भूटान की तरफ जाने लगे तो प्रॉब्लम आई। देन बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार कहते हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश, दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, उनके बीच भी ट्रबल आया। ट्रबल सबसे बड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बना बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, वो रोहिंग्याज के कारण बना। और अभी इन रिसेंट ईयर्स ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुआ, जबकि 2017 में जेनोसाइड हुआ रोहिंग्याज का म्यांमार में, और उसके कारण वहाँ से रोहिंग्याज जो है वो फ्ली करना स्टार्ट किए। दे स्टार्टेड टू फ्ली फ्रॉम दैट कंट्री। और ये जो रेफ्यूजी का प्रॉब्लम था वो रोहिंग्याज माइग्रेशन कर जो रहे थे बांग्लादेश में, वो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कॉज बना कॉन्फ्लिक्ट का। Not only this, Bangladesh and Nepal, they are also having some conflicts regarding the रिवर वाटर को लेकर बांग्लादेश और नेपाल के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट है साउथ एशिया के, उसमें इंडिया ही इन्वॉल्व है। Because India is the major country, the most important country, the most powerful country, the biggest country of the region, तो obviously जो भी problems होगा वो इंडिया के साथ ही associated होगा। तो ये चीज़ें हैं, हम we are facing this। बस ये this is all about the chapter. Now the next topic, which is SAARC, that topic has been shifted to 4th chapter, which we have discussed when we were discussing new centers of power. In that new centers of power, SAARC is also there, है ना। तो SAARC को हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि प्रीवियसली इसी चैप्टर में हुआ करता था। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। और अब हम वी विल डू सम क्वेश्चंस, जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। एंड इससे रिलेटेड मैप वर्क भी आते हैं, साउथ एशिया का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड मैप वर्क को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब कुछ वी विल डू।
एंड इस कॉन्टेक्स्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ही होगा। उसको हम लोग डिस्कस करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्टली वही है कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, किस तरह से वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस हुआ, किस तरह से वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा जो मेजर क्वेश्चंस इसमें बनेंगे वही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंडिया बांग्लादेश में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या कोऑपरेशन के इश्यूज हैं, इंडिया नेपाल का रिलेशन, इंडिया श्रीलंका का रिलेशन। तो ये these are the important questions. So we will discuss all these in the next class.